हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टान तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़, जय झूलेलाल। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। पंख फ्लाई सपनों की उड़ान में आपका फिर से स्वागत है। मैं एनसीईआरटी पढ़ो सीरीज की नेक्स्ट कड़ी, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 मैथ्स, दैट इज चैप्टर 2 होल नंबर्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर about the concepts. So before moving on towards the exercise of 2.1, we have to go through some concepts which we literally have to understand before moving on towards the exercise. पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में. So as we know, we use, जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है स्लाइड पर, आप देख सकते हैं कि when we begin to count, they come naturally when we start counting. Hence mathematics call the counting numbers as natural numbers. So basically we call the definition of counting numbers, that means the definition of natural numbers. So the counting numbers are basically called the natural numbers, as you all know, है ना? So moving on to our new concept, that is predecessor and successor. Pre मतलब होता है पहले और successor माने होता है बाद में, ठीक है? So predecessor मतलब एक step before और successor माने just next to it. If I'm asking, let's suppose 57 वैल्यू है और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इसका predecessor आप बताइए. So reduce this particular value by -1. So you will get the predecessor value. Many of the students were not able to understand that what is predecessor and what is successor. So predecessor means minus by 1, ठीक है? As you can see on the screen, given any natural number, you can add 1 to that number and get the next number, that is you get its successor. If you will add a particular value, like if you are adding 1 to 57, then you will get 58. As you can see, the examples I've written on the screen. So the successor of 16 is 16 plus 1 equals to 17. That of 19 is 19 plus 1 equal to 20. So on. So these are the successors. So the number 16 comes before 17. So we say, आप जैसा कि जानते हैं कि 16 17 के पहले आता है. So we say that the predecessor of 17 is 17 minus 1, that is equals to 16. Are you understanding it? Yeah. So now you got the point that what is the difference between predecessor and successor. Pre मतलब पहले and successor मतलब after that particular value. So points to say, predecessor मतलब -1. You have to subtract that particular value for which we were asking the predecessor, and you have to add by 1 or add the particular value by 1 to get the successor of that value. So that's all for this. So moving on to our new concept, that is many of the students got stuck कि write the predecessor and successor of 19. तो चलिए आइए सोचते हैं कि 19 का क्या होगा. तो 19 का you can say that obviously 20 is the successor. अगर मैं 997 की बात करूं तो एक ऐड कर देंगे तो इसमें 998 हो जाएगा. 12,000 में एक ऐड कर देंगे तो 12,001 हो जाएगा. 49 में एक ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा. और 1 लाख में 1 ऐड कर देंगे तो 1,01,000 हो जाएगा. सो इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीडेसेसर? कोई ऐसा नेचुरल नंबर है? देखिए, यहां कोई भी होल नंबर की बात नहीं कर रहा है, यहां केवल और केवल नेचुरल नंबर की बात कर रहा है. तो आप दिमाग से सोचिए कि काउंटिंग, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि नेचुरल नंबर्स कहां से बिगिन होते हैं, 1 से. सो ऑब्वियसली द स्मॉलेस्ट नंबर, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीडेसेसर? यस, 1. 1 का कोई भी प्रीडेसेसर नेचुरल नंबर नहीं होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दिस. भाई कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका प्रीडेसेसर नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑब्वियसली द डेफिनेशन एंड ऑल्सो विद द कॉन्सेप्ट, नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम 1. तो 1 को अगर मैं कहूं कि मुझे 1 का प्रीडेसेसर नेचुरल नंबर बताइए, प्रीडेसेसर नेचुरल नंबर, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो 1 का कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो 1 का कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है. सो बी विद इट and try to understand this concept. So 1 is the smallest number for which there is no predecessor exists, which is natural. Okay. So is there any natural number which has no successor? Is there a last natural number? So just think it and do it yourself. Everything I am not going to tell you. So moving on to our new concept, that is whole number. We have seen that number 1 has no predecessor in natural numbers. To the collection of natural numbers, we add 0 as the predecessor for 1. ये समझने का प्रयास करिए कि हमने कई बार देखा है कि नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर इन नेचुरल नंबर, जैसा कि अभी मैंने बताया. टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स वी ऐड 0 एज द प्रीडेसेसर फॉर 1. ठीक है. सो द नेचुरल नंबर अलोंग विद 0. अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें और उसमें एक डिजिट या एक नंबर और ऐड कर दें सिंगल डिजिट का, दैट इज कॉल्ड 0, तो वही चीज क्या हो जाती है? होल नंबर. सो होल नंबर, वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बिकॉज they are contained within
नेचुरल नंबर्स. सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज होल नंबर. आप नेचुरल नंबर्स में 0 और 1 लगा दीजिए तो बेसिकली वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर लाइज विद इन होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में एक डिजिट ज्यादा होता है, एक नंबर ज्यादा होता है, दैट इज 0, है ना. सो बेसिकली वी कैन से दैट होल नंबर means all natural numbers are whole numbers. So I think you understood this concept. Moving on to our new slide, that is try these. All the natural numbers also whole numbers? Yes, true. All whole numbers are also natural numbers. क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता लेकिन वो होल नंबर होता है. तो सारे नहीं होते, केवल एक 0 को छोड़ के. विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर? कौन सा ग्रेटेस्ट होल नंबर होगा? ठीक है, तो ये सब बातें थॉट करिए आप. जब तक हम एक्सरसाइज बिगिन करेंगे तब हम बताएंगे आपको इसके बारे में. अब हम बात करें नंबर लाइन की. नंबर लाइन यू ऑलवेज नो दैट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट इज ऑलवेज बिगिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना. लेफ्ट से इंक्रीमेंटेशन होता है राइट की तरफ. अगर मेरा जो राइट है वो आपका लेफ्ट होगा, तो इफ आई से दिस आपका राइट, आप देख सकते हैं ये आपका राइट होगा, ऑब्वियसली ये आपका लेफ्ट होगा. ठीक है, सो मीन्स टू से 0 में एक एक यूनिट, जैसा कि आप स्केल में नापते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर को हम लोग नंबर लाइन पर 1 यूनिट कहते हैं. तो 1 यूनिट का डिस्टेंस मान लेते हैं मिनिमम स्केल पे. 0 1 2 3 4 5 6 so on. So it's moving on towards the right in a increasing order. If somebody asks you कि increasing order नंबर लाइन में कहां से कहां होता है, तो it is always exist from left to right. So moving on to our new concept, addition on the number line. देखिए जब भी आप नंबर लाइन में ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3. ये देखिए यहां पर एडिशन ऑन द नंबर लाइन पर, ये जो नंबर लाइन बनी हुई है आपके सामने, इसमें एडिशन हो रहा है. अब जो पहला डिजिट है, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐड कर रहा हूं 3 and 4. देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. अगर आप 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं तो वी विल स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ मेकिंग द एडिशन टू बी हैपन ऑन नंबर लाइन. तो इफ यू वांट दिस एडिशन ऑन द नंबर लाइन, तो कैसे किया जाता है? पहला डिजिट आप ले लीजिए, वहां से आप बिगिन करेंगे एरो बनाना नंबर लाइन पर. तो 3 से देखिए इसमें, क्योंकि 3 पहला डिजिट है और दूसरा नंबर है 4. ठीक है, सो वी विल बिगिन विद 3 onwards and we will move 4 steps towards, मतलब 4 यूनिट आगे जाएंगे. तो देखिए पहला ब्लू एरो 4 पे गया, देन 5 पे गया, देन 6 पे गया, देन 7 पे. तो हम 4 यूनिट्स आगे आ गए तो हमको मिल गया 7. सो दिस इज द एडिशन ऑफ 3 and 4, दैट इज 7. सो इन दिस मैनर वी विल डू द एडिशन. एंड इसी तरीके से जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो जिसमें से सब्ट्रैक्शन करना है हम वहां से स्टार्ट करते हैं और उल्टी तरफ, मतलब कि लेफ्ट साइड में, आप नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ना कि लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट एडिशन के लिए और राइट टू लेफ्ट सब्ट्रैक्शन के लिए. जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे सेकंड एग्जांपल में कि 6 से स्टार्ट किया है, क्योंकि 7 - 5 कर रहे हैं, तो 7 से 5 स्टेप पीछे जाएंगे. तो 1 2 3 4 5, दैट इज ऑन 2 इट विल बी गोइंग टू बी फिनिश्ड. दैट्स ऑल फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट. नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन. अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे होगा? जैसे मैं 4 × 3 कर रहा हूं, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 4 वैल्यू ले लें और 4 यूनिट्स को 4 टाइम्स उसको एरो से कन्वर्ट करें. बट बेस्ट ये रहता है कि जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट सपोज इफ आई एम डूइंग इट 4 × 3, दैट मींस द मल्टीप्लायर इज 3 एंड मल्टीप्लिकेंट इज 4. अगेन आई विल रिपीट, 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से, ठीक है, तो 3 को उठा लेंगे जो दूसरा डिजिट जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसको 4 टाइम्स हम 3 के स्टेप्स बनाएंगे तो भी 12 आ जाएगा. अगर 4 को आप 3 टाइम्स भी करते हैं तो भी 12 आ जाएगा. So in this manner we will do the multiplication. जैसे यहां पर 3 लिया हुआ है तो 3 steps, then 3 steps, then 3 steps, then 3 steps. तो टोटल 3 steps 4 बार लिए, तो हम कहां पर पहुंच गए? 12 पर. So we got the multiplication by using the number line. In this manner we will show the multiplication of numbers on the number line. So I think you all understood about it. Moving on towards our exercise in the next upcoming video. So thanks for watching my video. I'm really thankful that you're watching my videos and liking my videos. If you really like this concept of way of टीचिंग थ्रू पंख फ्लाई सपनों की उड़ान, तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मेरे चैनल को ना भूलें. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. सपनों की उड़ान में आपका फिर स्वागत करूंगा. मैं दीपक ओचानी, आपका होस्ट और आपका दोस्त. फिर मिलूंगा. बाय बाय. सी यू. टेक केयर.